Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. हाँ, गुड मॉर्निंग। आज का आपका टॉपिक है हर्बेरियम टेक्निक्स। तो हर्बेरियम टेक्निक्स का सिंपल मतलब है कि हम विशेष रूप से जंगली पौधों को सुखाकर पुष्प के साथ, है ना, पहली अवस्था है, बिना पुष्प के नहीं किया जाता। तो जंगली पौधों को पुष्प के साथ सुखाकर प्रॉपरली प्रेस करके एक पर्टिकुलर साइज की हर्बेरियम शीट पर लगाई जाती है, जिससे कि भविष्य में हमें जरूरत पड़े उस पौधे के बारे में तो हर्बेरियम शीट को निकाल के उस पौधे के बारे में जानकारी दे सके। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, तो ध्यान से सुनते जाइए। हर्बेरियम or plural herbaria is a collection of dried plant specimens arranged according to an accepted system of classification, such as Bentham and Hooker. It is an important source of data used by researchers in many plant-related sciences and is primarily used for the taxonomic research. Herbaria are centers where plant taxa are studied, which include identification, nomenclature, classification, distribution, and uses. It is Latin word or Latin term herba, originally meant for grass or pasture, was derived from Greek word phobe, which is in turn appears to be derived from Sanskrit word bhar, that is pasture or forage. So the word herbarium initially referred to a book on medicinal plants. It was Townfort in 1700 who first used the term for a collection of dried plants. So the specimen may be whole or part, usually in a dried form, mounted on a sheet, but depending upon the material, may also be kept in alcohol or other preservatives. The same term is often used in mycology to describe an equivalent collection of preserved fungi. So the collection in the field or acquisitions of material from elsewhere, जहां से भी आपने लिया है वो material, provide the material source for a herbarium. तो ये कुछ 4 herbarium यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि कैसे उनको भविष्य में अध्ययन के लिए हम herbarium का निर्माण करते हैं। ये कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट है। एल गिनी 1419 to 1556, a professor of botany of the University of Bologna, Italy, is credited for being the first person to have dried plants under pressure
and to have mounted them on paper so that they could be preserved for a long time. तो ये पहला उदाहरण है हर्बेरियम बनाने का, जो इटली में बनाई गई सबसे पहले. Likewise, in the US also, several herbaria existed in the mid-1700s, of which many were brought to Europe during the first 400 years of existence. Herbaria grew from personal collection to the small local or regional collection to the large institutions of the national and international significance. Over 72 uses have been mentioned by Vicky Fung for a herbarium. It helps in the identification of a plant specimen. This is the first and foremost aim. Second, important data recorded on herbarium labels and in planning field trips. भविष्य में आप जाना है उसको देख के जा सकते हैं कि वो पौधा कहाँ मिलेगा. The collections are also used for climate change studies and producing checklists for floras. Herbaria, dried pressed plant specimens and their associated field data. Ancillary collections, for example, photographs and library materials are also remarkable sources of information about plants and the geographic region they inhabit, जहां से उनको collect किया गया है. They provide the comparative material that is essential for studies in taxonomy, systematics, ecology, anatomy, morphology, conservation biology, biodiversity, ethnobotany, and paleobotany, as well as used for academic and public purposes. A herbarium is also a comprehensive data bank which represents the world plant diversity in one place, and students or researchers who are facing difficulties in collecting plants from other parts of the world can study the collection in the herbarium. General और इंटरनेशनल हर्बेरिया. तो आज बहुत सारी तरह की हर्बेरिया अवेलेबल हैं दुनिया में. These are very large herbaria, often with a 4 million or more plant specimens and a global representation of as near a comprehensive range of taxa as possible. They are very rich in types and other historical specimens. That is, the functions of general herbaria include broad-scale studies of the families and above, production of generic monographs, major floras. Floras are basically covering several countries भी हो सकते हैं, जैसे Indian flora, flora Balia, flora of UP, national and local floras. Services include loans provided facilities for visiting botanist, identifying specimens, especially noting new taxa and dispatching determination list, distributing duplicates. दूसरे प्रकार के जो हर्बेरिया होते हैं उनको कहते हैं नेशनल और रीजनल हर्बेरिया. They are geographically cover the country concerned, जैसे मान लीजिए इंडिया का करना है, and neighboring or phytogeographically similar areas. इंडिया का करना है, हमने साथ में नेपाल का कर लिया, भूटान का कर लिया, श्रीलंका का कर लिया, बांग्लादेश का कर लिया. As far as possible, all taxa relevant to the area should be represented. So the type material is often well represented, especially among the more recently described taxa.
The function of national herbaria. Contribution to the major floras, which may covering several countries. Protection of national and local floras. Aid in assessment of the threatened plants. ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो कि कम होते जा रहे हैं, तो उनके बारे में पता लग जाएगा. Services include those providing facilities for visiting botanists, identifying specimens. I have already told you the same. Then come to the local herbaria, जैसे हम बलिया लेवल पे करें. These deal with the region within a country, such as a state, country, or district, even a much smaller area, such as game park or natural research. They may contain a few type specimens. All taxa significant to the area should be represented, but it is not necessary to keep large number of each taxon. So the function of a local herbaria include contributions to the national flora, production of local flora and checklists. Services include, again, the identifying specimens. Now, next type is special herbaria. There are several types of special herbaria depending on the function, such as historical herbaria. They may be kept as separate herbarium within a general herbarium. For example, at Kew, in the name of Deacon Doley, the famous taxonomist, or belong to the separate institution, such as Linnean Society, or universities, museums, etc. They are usually arranged in their original sequence, and hence restrictions governing consultation and laws. Herbaria of limited scope. These may be either limited taxonomically, for example, cryptogamic herbarium, or ecologically, for example, forest herbarium. तो पहली वाली herbarium में only cryptograms को किया जाएगा, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को, और दूसरी प्रकार में केवल जो फॉरेस्ट में प्लांट्स पाए जाते हैं. They are often separately housed within a general herbarium or other institutions. These are some of the photographs of the herbarium. A rack, this is herbarium room, having racks with the proper arranged herbarium sheets. These are some of the photographs. This is again the press made by the use of the hardened ply on both the sides. Now teaching herbaria. These are housed and understanding with the more modest herbaria in colleges and schools. Second type is job-related herbaria. These could include the collection of weed species for agriculturists or honeybee-related plants for beekeepers. Third, herbaria for special research programs. These include watcher specimen for anatomy, cytology, chemical studies, ecological surveys, etc. So this is the digital herbarium of Calcutta. क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया में सबसे बड़ी हर्बेरियम है, इसको नेशनल हर्बेरियम कहा जाता है, इंडियन नेशनल हर्बेरियम INH, which is situated in Sipur, Habra. तो डिजिटल हर्बेरियम का मतलब है जो भी हमने हर्बेरियम शीट को कलेक्ट किया गया है, अलमारीज में अरेंज किया गया है बेंथम एंड हुकर के हिसाब से. बेसिकली बेंथम एंड हुकर का हिसाब का मतलब है पहले हमने पॉलीपेटली से संबंधित प्लांट्स को अरेंज किया सीक्वेंशियली, देन गेमेपेटली, देन मॉलिक्यूलर आईडी. ये 3 ग्रुप हो गया डाइकोट्स के,
और चौथा ग्रुप हो गया मोनोकॉट्स का। तो बेसिकली एंजियोस्पर्म्स को हम 4 समूह में सिक्वेंसली, मेनली अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ बेंथम हुकर, फिर उसका डिजिटाइजेशन कर दिया। मतलब आप चाहे तो कंप्यूटर से वो सारी लिस्टिंग देख सकते हैं कि इस हर्बेरियम में कौन कौन से प्लांट्स हैं आपके पास। These are some of the important herbarium of the world. This is in France. This is in United Kingdom, commonly known as Royal Botanical Garden. This is in Russia, Sweden, again USA, Switzerland, United Kingdom, France, Italy, Belgium. और इंडिया में सबसे लास्ट में है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम हावड़ा, कलकत्ता, जिसमें लगभग 20 लाख से ज्यादा प्लांट्स कलेक्टेड हैं। These are some of the photographs of the herbarium. This is outside, this is inside arrangement. These are some of the important international herbaria. This is also very important herbarium of the Petersburg. This is herbarium of Botany Department, Natural History Museum, London. This is the proper arrangement of the herbarium, dried herbarium plant specimen in Almiraj. And these people are studying the specimens, or they are the researchers. This is Cambridge herbarium, this is Oxford herbarium, this is Stockholm, then Canberra. These are also some of the important herbarium in India. Main is Central National Herbarium, Havra, Calcutta. Then Forest Research Institute, Dehradun. Botanical Survey of India, Eastern Region, Central Assam, Shillong. This is in Coimbatore. This is in Lucknow, nearest Lucknow or Allahabad mein hai. This is Tiruchirappalli, Mumbai, Pune, Dehradun. Allahabad is very near one of the regional office of the BSI, Botanical Survey of India, situated in Allahabad, Central Regional Center. This is Kolkata, Pune, Lucknow. CDRI also having herbarium related to the medicinal plants. Central Drug Research Institute. This is in Gangtok, Calicut, Jodhpur, Port Blair, Itanagar, and Coimbatore. So these are some of the important 19 national herbarium, especially related to India, having the maximum collection of the 20 lakhs to about 18,722. There are also some of the important herbarium in Calcutta, Pune. This is the Allahabad herbarium. तो सबसे पास यही है, उसके बाद लखनऊ में है. This is Thiruvananthapuram or Trivandrum. Mumbai herbarium, Pune herbarium. Now come to the objectives. Main objectives of the herbarium or the botanical collection. First, building new herbaria or for enriching old herbaria. Second, collecting plant material for writing a flora.
especially in the form of a book or thesis. Third, collecting live material for introduction in garden or hybridization. Collecting material of particular genus or a species for research work or for any analysis. Next, collecting large quantities for trade and ethnobotanical studies. थोड़ा सा मैं आप लोगों को इथनोबॉटनी के बारे में बताना चाहूंगा। तो इथनोबॉटनी की वो शाखा है जिसमें हम उन प्लांट्स के बारे में अध्ययन करते हैं जो आदिकाल से जनजातियां, ट्राइबल पीपल विभिन्न कामों में उनको इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जब को उनको कोई टेक्सोनॉमी की नॉलेज नहीं हुआ करती थी, फिर भी उन्हें पता था कि ये पौधा इस बीमारी में काम आएगा। इसी तरह रिचुअल्स में जितने प्रकार की पूजा पाठ में आप देखते हैं कि तुलसी की इम्पोर्टेंस है, केले की इम्पोर्टेंस है, शादी में और अन्य फंक्शंस में आप अलग अलग तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं। दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द इथनोबॉटनी। ओल्ड बिल्डिंग्स पे आप देखेंगे, ताजमहल पे देखेंगे कि बहुत सारे चित्र बने होंगे पौधों से संबंधित, वो भी इथनोबॉटनी का पार्ट है। तो इथनो मेडिसिन, ये जो भी आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग्स हैं उनसे संबंधित भी। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द इथनोबॉटनी। Another aims, general flora, biodiversity, collection, special groups. ये सब सारी चीजें भी हर्बेरियम के द्वारा हमें पता लगती हैं। Gather general information and customs of the area, जैसे लिटरेचर के बारे में, ट्रेवल व्यू के बारे में, मैप्स है, टोपो शीट्स, हर्बेरियम लेबल्स, लॉज एंड कस्टमर, accessibility, available support and climate. ये थोड़ा सा डिटेल में है, बेसिक हिसाब से जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बेसिक आइडिया आपको होना जरूरी है। अब हर्बेरियम बनाने से पहले आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हर्बेरियम के लिए आप ऐसे ही चल दिए फील्ड में, तो आपके लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ सकती है। जैसे वेस्कुलम। वेस्कुलम बेसिकली एक कंटेनर है। जैसे हम कई बार क्या होता है, एक्वेटिक प्लांट्स को करना होता है, तो एक्वेटिक प्लांट्स को हम करेंगे तो वो क्या होगा, थोड़ा गीले होंगे, तो उनको एक खास तरह के कंटेनर में किया जाता है। फिर हमको एक चाकू या कटर की जरूरत पड़ सकती है बड़ी शाखाओं को काटने के लिए। प्रूनर की जरूरत पड़ सकती है, चाकू है, खुरपी की जरूरत पड़ सकती है। मान लीजिए रूट स्टडी करनी है आपको, वैसे जनरली रूट नहीं की जाती है, क्योंकि हर्बेरियम शीट पे पूरा पौधा कैसे आएगा। छोटा तो अब तो पॉसिबल है, लेकिन बड़े पौधे नहीं आ सकते। तो हार्डन प्लांट के लिए प्रूनर जरूरत है, पॉलीथीन बैग, जिससे कि पौधे बेसिकली ड्राई ना हो जाए। गर्मी के मौसम में यदि आप कर रहे हो तो ड्राई हो जाएंगे, तो लीफ की शेप एकदम बदल जाएगी। फील्ड नोटबुक की बहुत जरूरत है कि आप ये कलेक्शन करने के लिए कहाँ जा रहे हैं, वो एरिया का नाम, डेट का नाम और बहुत सारी जानकारी लोकल पीपल से उसमें नोट की जाती है। साथ के साथ ये भी नोट किया जाता है कि आप कलेक्शन के समय फ्लावर का कलर क्या था, क्योंकि सूखने के बाद वो कलर पता नहीं लगेगा। हैंड लेंस बहुत जरूरी है। हैंड लेंस का मतलब है बहुत सारे फ्लावर्स, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि हर्बेरियम सीड उसी स्पेसमेंट की जाती है जिसमें पुष्प आया हुआ है। तो केवल पत्ती का करना, केवल जड़ का करना, तने का करना, वो आपको कंप्लीट हर्बेरियम स्पेसमेंट नहीं मान जाएगा जब तक कि उसमें पुष्प ना हो। तो पुष्प होना बहुत जरूरी है। कई बार जैसे अमरंथेसी के सदस्य हैं, चौलाई ग्रुप के सदस्य हैं, उनके फ्लावर नजर नहीं आते, तो फिर उसके लिए आपको एक छोटा सा हैंड लेंस की जरूरत पड़ेगी। अब एडवांसमेंट हो गया है तो जीपीएस सिस्टम के एग्जैक्ट लोकेशन, अब तो हम हर चीज में एडवांसमेंट है। आपके मोबाइल में जीपीएस सिस्टम है, एग्जैक्टली वहाँ की लोकेशन आपको पता लग जाएगी। एल्टीट्यूड है, लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है। ओल्ड पेपर बहुत जरूरी है। ओल्ड पेपर इसलिए जरूरी है कि जो भी पौधे, जो भी शाखा, जो भी ट्यूब कलेक्ट की जाती है, उसको प्रॉपरली अखबार में ही दबाने की जरूरत होती है। नहीं तो ब्लॉटिंग पेपर क्योंकि आजकल बहुत कॉमन प्रैक्टिस में नहीं है,
उसके बाद ड्राइंग शीट्स की जरूरत है, उसके बाद प्रेस है, जैसे मैंने शुरू में बताया था, प्रेस का मतलब है अखबार में प्रॉपर्ली उनको पत्तियों को सीधा करके दबा दिया जाता है। उसके बाद हार्ड एंड प्रेस ऊपर नीचे रख के ऊपर से कोई ईंटा या पत्थर रख देंगे, या यदि आप उसको घर ले आए तो बहुत सारी किताबें रख दीजिए। तो फील्ड प्रेस है, रोप भी जरूरत पड़ सकती है, एल्टीमीटर है, कहाँ कर रहे हैं, टेंट भी, मान लीजिए आपका लंबा प्रोग्राम है, कई दिन तक आपने करना है कलेक्शन, तो पूरा ये कि ग्रुप में जाएंगे तो टेंट में जाना पड़ेगा। और फर्स्ट एड बॉक्स भी तो बहुत जरूरी है, मान लीजिए हाथ कट जाए, कुछ कट जाए तो ये सारी चीजें एक हर्बेरियम कलेक्शन से पहले हमारे पास होना जरूरी है। ये नहीं होगा तो हमें फिर फील्ड में चले गए तो और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत है। पानी की बोतल भी अपने साथ रखना होता है, क्योंकि आप जाएंगे तो पानी नहीं मिलेगा वहां पे। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। और आजकल मैंने जैसे बताया कि एडवांसमेंट हो गया है, तो पहले तो हम लोग करते थे तो कुछ नहीं था, हमारे पास मोबाइल होता ही नहीं था। लेकिन अब यदि आप सारी चीज करना है तो आपके पास मोबाइल जरूरी है, तो उससे फोटो ले लीजिए, नहीं तो अलग से कैमरा लेके जाइए। तो उससे ये है कि आपको प्रॉपर कलेक्शन पता लग जाएगा। तो टेकिंग फोटोग्राफ्स, मेकिंग ऑब्जर्वेशन आपको करनी पड़ती हैं, और फिर हर्बेरियम शीट से संबंधित बहुत सारी चीजें अपनी नोटबुक में, फील्ड बुक में नोट करेंगे। जैसे कलेक्शन नंबर, फील्ड नंबर, नेम ऑफ प्लांट, फैमिली, जीन यदि पता है तो लिख लीजिए, नहीं तो बाद में फिर आइडेंटिफाई कराना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद प्रोविंस, वो कौन सी स्टेट में कर रहे हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, कौन सा कंट्री है आपका, लोकेलिटी क्या है, जीपीएस सिस्टम से एल्टीट्यूड पता लग जाएगा। हैबिटेट, आपने किन परिस्थितियों में किया, मतलब वो हाइड्रोफिटिक था, जीरोफिटिक था, या मीजोफिटिक प्लांट है, मतलब टेरेस्ट्रियल वन है। फिर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी फील्ड बुक में लिखा जाता है। A description of the plant is always useful, especially regarding the characters that are not kept on herbarium specimens, such as height of the plant, habit माने appearance, वो herb है, shrub है, tree है, flower color, and also smell. Then date of collection and collector's name, मतलब आप कर रहे हो तो आप अपना नाम लिखोगे उस पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने हर्बेरियम की बातें बता दी आपको। What not to collect? Do not collect a plant or in areas if it is prohibited. कई बार हम ऐसे गार्डन में चले जाते हैं, आपका मन कर रहा है वहां से प्लांट कलेक्ट करने का, तो मैंने पहले ही बता दिया कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स नहीं किए जाते हैं कलेक्ट, ओनली खरपतवार, वीड्स किए जाते हैं। तो जहां पे कुछ लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, तो वहां पे नहीं करना पड़ेगा, तो आपको बेसिकली जंगली प्लांट्स को करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं, हर्बेरियम सीड का भी एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल साइज होता है। मार्केट में कुछ भी साइज की अवेलेबल होंगी, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द हर्बेरियम शीट, दैट इज 42 into 28 सेंटीमीटर इन इंडिया। अलग अलग देशों में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है। तो 42 into 28 सेंटीमीटर इन इंडिया, 42 into 29 सेंटीमीटर इन यूएसए, 42 into 26 सेंटीमीटर in Q माने लंदन, एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज में 44 into 29 सेंटीमीटर। तो हमें अपना देश का याद रखना है। 42 into 28 सेंटीमीटर इन इंडिया, दिस इज द एग्जैक्ट साइज ऑफ ए हर्बेरियम सीट इन इंडिया। ठीक है। अब ये अलग अलग तरह के प्लांट्स कलेक्ट करने होते हैं, तो फिर उनको उसी हिसाब से करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया, हाइड्रोफिटिक को करेंगे तो फिर वो अलग होगा, मेसोफिटिक का करेंगे तो अलग होगा, और जीरोफिटिक को कलेक्शन अलग से करते हैं। अब कुछ मेथड्स ऐसे आएंगे जिसमें कि ऑर्किड्स वगैरह है, ऑर्किड्स हमारे यहाँ पास उठे नहीं है, कलेक्शन ऑफ फंड्स भी करते हैं, कुछ लोग पाम भी करते हैं। तो ये कॉमन आर्टिकल है जिसमें कि हमने डिफरेंट प्लांट्स के बारे में कलेक्शन या हर्बेरियम बनाने की बात आ रही है। अब
रिटेंशन ऑफ कलेक्शन। रिटेंशन का मतलब है जो आपने कलेक्ट किया है वो खराब ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो। तो उसके लिए बहुत सारे हमको मेथड्स भी अपना करने पड़ सकते हैं। जैसे कलर ऑफ द लीव्स एंड फ्लावर्स कैन बी रिटेन्ड बाय प्रिजर्विंग द स्पेसिमेन इन बॉटल्स विद द फॉलोइंग सॉल्यूशन। इसमें 50% अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल एसिटिक एसिड, क्यूप्रिक क्लोराइड एंड यूरेनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन होगा। तो इससे क्या होगा, वो खराब नहीं होंगे। रिपीटेड चेंजेस ऑफ द पेपर, जिसमें कि आपने पेपर में उनको प्रिजर्व किया है, दबाया है न्यूज़पेपर में, उसको बदलते रहिए, क्योंकि नहीं बदलेंगे तो फंजाई लग जाएगी उसमें। तो उनको प्रॉपर आपको चेंज करना पड़ेगा। पुट द ड्राइंग प्लांट्स इन कॉन्टेक्ट विद सैलिसाइलिक एसिड शीट्स, जिससे कि वो उनमें इन्फेक्शन नहीं होता है। इमर्ज द फ्लावर इन अदर सॉल्यूशंस आल्सो। प्लांट मटेरियल को लंबे समय के लिए हमें, जैसे हम लोग अपने घरों में गर्म कपड़े रखते हैं, जाड़ा खत्म हो जाएगा, उनको अच्छे से साफ करेंगे, उसके बाद उनमें ओडोनिल वगैरह या नेफ्थिलिन की गोली रखी जाती है। उसी तरह का मेथड यहाँ भी अपनाया जाता है, जिससे कि जो कि ड्राइड मटेरियल आपने हर्बेरियम शीट पे चिपकाया हुआ है वो लंबे समय तक कंजर्व रहे, प्रिजर्व रहे। तो उसके लिए ओडोनिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नेफ्थिलिन की बॉल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में जो सबसे इफेक्टिव मेथड बताया गया है वो है कि जब आप हर्बेरियम शीट पे एक प्रॉपरली ड्राइड मटेरियल को चिपका देते हो, चिपकाने का मतलब है टेप से भी चिपकाया जा सकता है और अंदर की साइड में थोड़ा फेविकॉल लगा दीजिए, तो वो चिपका दिया आपने। फिर चिपकाने के बाद 0.1% सॉल्यूशन ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड, क्योंकि वो हाईली पॉइजनस होता है, इसलिए ग्लव्स और मास्क लगा के किया जाता है। अल्कोहल में सॉल्यूशन बनता है। बनने के बाद ब्रश से पूरी सरफेस पे लगा दीजिए। तो मर्क्यूरी क्लोराइड AgCl2 का सॉल्यूशन लगाने से ये फायदा होगा कि उसमें किसी प्रकार के कीड़े, किसी प्रकार की फंजिकल इन्फेक्शन नहीं होगा और वो कलेक्शन एक लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सकता है। तो ये कुछ मेथड्स हैं। फ्यूमिगेशन भी किया जाता है यदि लार्ज स्केल पे आपने कलेक्शन किया है, तो सेल्फोस टैबलेट्स आती हैं, उनको फ्यूमिगेट कर दिया जाता है पूरे कमरे में। उससे भी आपका वो मटेरियल खराब नहीं होता। जनरली एक स्पेसिमेन एक शीट पे लगाया जाता है। और हर्बेरियम शीट पे जो भी राइट हैंड साइड कॉर्नर पे हमको लिखना होता है, उसमें नेम ऑफ द हर्बेरियम, जैसे मान लीजिए टीडी कॉलेज के हर्बेरियम लिखेंगे, आप नाम लिखेंगे बॉटनी डिपार्टमेंट टीडी कॉलेज। देन फ्लोरा बलिया डिस्ट्रिक्ट हो गया। नेम ऑफ द फैमिली, जो भी प्लांट है, रेननकुलेसी का है तो रेननकुलेसी लिखेंगे। नेम ऑफ द जीनस, जैसे रेननकुलस है तो रेननकुलस लिखेंगे। स्पीसीज स्क्लेरोटिस लिखेंगे। लोकेलिटी आपने कहाँ किया है, आवास विकास से किया है, कहाँ से किया है, वो लिख देंगे। डेट ऑफ कलेक्शन लिख देंगे। डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा रिमार्क लिख देंगे, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, आप कर रहे हो। और यदि उसका कॉमन नेम आपको मालूम है तो कॉमन नेम भी उस राइट हैंड साइड कॉर्नर है हर्बेरियम शीट पे लिख दिया जाता है पेंसिल से। ये बड़ी खास बात है, हर्बेरियम शीट पे जो भी चीज लिखी जाती है वो पेंसिल से लिखी जाती है, जिससे कि कुछ गलती हो तो उसको रब करके करेक्ट किया जा सके। तो दीज आर सम ऑफ द प्रिकॉशंस ऑफ मेकिंग हर्बेरियम शीट। तो मेरे ख्याल से एक बेसिक आइडिया मैंने दे दिया है आपको, और इम्पोर्टेंट हर्बेरियम के बारे में भी कि आपको कैसे हर्बेरियम बनानी है। आजकल सीजन भी चल रहा है, आप लोग कम से कम 30 हर्बेरियम, सारे छात्रों से कहा भी गया था शुरुआती दौर में, आपको जितने लोग आए थे क्लास में, कि 30 प्लांट्स लगाने हैं। और कोशिश करिए कि आपके सिलेबस में जितनी फैमिलीज हैं वो सब कवर हो जाए। थोड़ा मेहनत का काम है, लेकिन उसका तरीका ये है कि प्रैक्टिकल की जो बुक है आपके पास, प्रैक्टिकल पार्ट 2 की जो बुक है, आप उसमें प्रॉपर डायग्राम बना हुआ है। रेननकुलेसी से शुरू कर सकते हैं, तो 25 प्लांट लगा लीजिए डाइकोट्स के। डाइकोट्स में भी आप ऐसा करेंगे, पॉलीपेटली से संबंधित 10 प्लांट, गेमियोपेटली से संबंधित 10 प्लांट, मोनोक्लेमाइडी से संबंधित 5 प्लांट, और 5 प्लांट कोई भी मोनोकोट लगा लीजिए, जैसे पोएसी के मेंबर है, साइप्रेसी के मेंबर है। तो कुल मिला के आपको 30 प्लांट का
कलेक्शन करना है और कोशिश करें कि उनको फिर बेंथम एंड हुकर के हिसाब से उनको कलेक्ट अरेंज करेंगे आप लोग। वो डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ी अभ्यास की जरूरत है। कॉलेज खुलेगा फिर मैं ये सारी चीजें प्रॉपर्ली फिर समझा दूंगा आपको। So this is all about the herbarium techniques in detail. Now you can also prepare according to theory paper or also for the practical purposes. आज अच्छी अटेंडेंस है आप लोग, क्योंकि रोज बहुत कम जुड़ रहे थे।